start off with depreciation accounting, right? Let me just first get a broad idea as to, because depreciation is not a new word for all of you, right? आप लोगों ने depreciation word सुना है, and you would have done the accounting for depreciation as well, either in class, let's say 11 or class 12, whatever, right? So tell me, what do you mean by depreciation, and why do we have to charge depreciation? Right, see, most of us have a idea as to depreciation में करते क्या है, right? But then we need to understand why do we charge depreciation. देखो, depreciation accounting is derived from, or let's say accounting for depreciation is prescribed in accounting standard 6, right? What is accounting standard? Accounting standard कौन issue करता है? Institute of Chartered Accountants issue करता है. क्यों issue करता है? To provide a guideline as to how do you account for a particular thing, right? इसका फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि हम लोगों को एक गाइडिंग प्रिंसिपल मिल जाता है, और इस गाइडिंग प्रिंसिपल के वजह से एक कंसिस्टेंसी आता है कि सारे लोग इस गाइडिंग प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे इस गाइडिंग प्रिंसिपल को फॉलो करके, राइट, वो कंपेरेबल रहेंगे, जो वेरिंग ट्रीटमेंट्स होती है वो एलिमिनेट हो जाएगी, राइट? सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 गिव्स आउट द नॉर्म्स और रूल्स इन रिलेशन टू अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है? सो कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6. अब देखो डेप्रिसिएशन होता क्या है, राइट? लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाट डू वी मीन बाय डेप्रिसिएशन. सिंपल सेंस में डेप्रिसिएशन इज अ मेजर ऑफ वेरिंग आउट कंजम्पशन और अदर लॉस in the value of a depreciable asset, right? Big definition. What is depreciation? It is a measure. सबसे पहले हम लोगों ने क्या सुना? Depreciation is a measure. अब measure है तो किस चीज का measure है ये, right? So बोला this is a measure of wearing out, what else? Consumption और अदर लॉस, ठीक है? सो कैसे डिफाइन करें डेप्रिसिएशन को? डेप्रिसिएशन इज अ मेजर. मेजर ऑफ व्हाट? मेजर ऑफ बेयरिंग आउट कंजम्पशन और अदर लॉस, राइट? इन व्हाट? इन द वैल्यू ऑफ अ डेप्रिसिएबल एसेट. ठीक है? सो हमने बोला ये तो समझ में आया कि ये मेजर है, किस चीज़ का मेजर है? वेरिंग आउट कंजम्पशन और अदर लॉस इन द वैल्यू ऑफ अ डेप्रिशिएबल एसेट. फिर हमने पूछा कि ठीक है, इट इज़ अ मेजर, बट ये लॉस होते कैसे? हाउ डू दीज लॉस occur? Because you're saying that you are measuring a loss in the value of an asset, but how are these loss caused, right? So इन लोगों ने बोला कि these losses are caused by use, by affliction of time, or because of obsolescence, right? तीन causes से होता है भाई. It is caused due to, right? So it is caused due to use, effluxion of time और obsolescence. अब ये obsolescence किस तरह की? obsolescence हो सकते हैं ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी और एनी मार्केट चेंज, राइट? वेरी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन, आराम से समझते हैं. What do we mean by depreciation? एक simple example हम लोग लेते हैं. Let's talk about this air conditioner which is installed in our class, right? Let's talk about this air conditioner which is installed in our class. अब देखो depreciation हम किस चीज़ के ऊपर चार्ज करते हैं? depreciable asset के ऊपर. अब depreciable asset क्या है? We'll understand a little later. Let us talk depreciable asset मतलब it's a fixed asset, right? depreciable asset मतलब fixed asset. fixed asset क्या होता है? वो चीज़
जो कि हम यूज करते हैं अपने बिजनेस में टू डिराइव बेनिफिट्स ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, राइट? व्हाट इज फिक्स्ड एसेट? वो चीज जो कि हम अपने बिजनेस में यूज करते हैं over a longer period of time. What is this longer period of time? More than 1 year, and we derive benefit out of use of this particular thing, right? So we'll look more into it, but एक example लेते हैं. Let us talk about this air conditioner which is installed in our class. ठीक है? अब देखो ये air conditioner मैंने आज install किया है. अगर मैं इसको यूज करता हूँ 2-3 साल तक, 4 साल तक, राइट? सो डू यू थिंक दैट आफ्टर लेट्स से 3rd ईयर 4th ईयर में इट विल गिव मी द सेम परफॉर्मेंस एज इट वाज गिविंग मी इन द फर्स्ट ईयर? जितना कूलिंग ये फर्स्ट ईयर में करता था उतना ही सेम एफिशिएंसी से क्या ये कूलिंग 4th ईयर या 5th ईयर में भी करेगा? नहीं करेगा. व्हाई? बिकॉज आई हैव बीन यूजिंग इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. मैंने फर्स्ट ईयर में यूज करा, सेकेंड ईयर में यूज करा, रोज आई एम यूजिंग इट फॉर 12 आवर्स 14 आवर्स अ डे. Will the efficiency of air conditioner be same as it was when I purchased it and after 3 to 4 years? No, the efficiency will go down. और ये efficiency क्यों कम होगा? ये efficiency इसलिए कम होगा because I have been using this asset for a period of time, right? So अगर हम लोग use कर रहे हैं तो वो asset की capability कम होती जाएगी. सेकेंड एग्जाम्पल समझते हैं कि समझो मैंने ये एसी तो बहुत खुश होकर नया ले लिया, बट आई नेवर स्विच्ड इट ऑन. मैंने बोला पंखे से ही काम चलाते हैं, एसी क्लास में लगा रहेगा तो बहुत अच्छा लगेगा क्लास, राइट? आई नेवर स्विच्ड इट ऑन. देन आफ्टर 5 years आई रियलाइज यार अब इतनी भी कंजूसी करनी नहीं चाहिए, लेट अस पुट इट ऑन. सो इन द 5th year आई पुट इट ऑन. विल इट गिव मी एज मच एफिशिएंसी एज इट वुड हैव गिवन इन द फर्स्ट ईयर? क्या वही लेवल पे वो परफॉर्म करेगा 5 साल के बाद? नो. व्हाई? बिकॉज सिंस टाइम हैज पास्ड, टाइम की वजह से भी इसमें वेयर एंड टेयर हुआ है, राइट? सिंस टाइम हैज पास्ड, टाइम की वजह से भी इस एयर कंडीशनर की कैपेसिटी में वेयर एंड टेयर हुआ है, राइट? इसके इंटरनल पार्ट्स खराब हुए होंगे, कुछ पड़े पड़े, राइट, एटसेट्रा. इसमें जंग लगा होगा एंड दैट विल नॉट गिव मी एफिशिएंसी एज इट वुड हैव गिवन मी अर्लियर, राइट? सो अभी डेप्रिसिएशन किस दो वजह से हम लोगों ने देख लिया? यूज एंड इफ्लक्शन ऑफ टाइम. ये दोनों वजह से डेप्रिसिएशन क्रिएट होगा. द वैल्यू ऑफ द एसेट, द वैल्यू ऑफ द एसेट मतलब द कैपेबिलिटी ऑफ द एसेट टू गिव मी बेनिफिट विल रिड्यूस. जब हम बोलते हैं ना वैल्यू ऑफ द एसेट रिड्यूस, हमें वैल्यू से ज्यादा मतलब नहीं है, मॉनेटरी वैल्यू से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है? व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द एसेट टू गिव मी बेनिफिट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. The capacity of the asset to give me benefit will reduce. That is why वो जो loss हो रहा है मेरे को, उसको मेरे को account for करना पड़ेगा, right? Another thing is बोला कि भाई depreciation obsolescence से भी होता है. तो obsolescence कौन से टाइप के होते हैं? Obsolescence होते हैं technological changes and market changes. अब एक simple example मैं आपको देता हूँ technological changes का. समझ लो मैंने आज ये air conditioner install किया. ये एयर कंडीशनर मैं 12 आवर्स अ डे ऑपरेट करता हूँ इनटू 30 डेज अ मंथ, ठीक है? मेरा टोटल यूनिट कंजम्पशन होता है इसमें 5000 यूनिट्स. एक यूनिट का रेट है 10 रुपया, तो मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल महीने का कितना आएगा? 50,000 रुपीज. दिस इज द करंट स्टैंडर्ड. आई एम यूजिंग दिस एयर कंडीशनर फॉर 12 आवर्स, राइट? 30 डेज. टोटल महीने में मेरा यूनिट जो कंज्यूम होता है वो 5000 होता है. पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का जो रेट है वो है मेरा 10 रुपया, तो मेरा मंथली बिल कितना आ रहा है? 50,000 रुपीज. अब समझो मार्केट में मैंने लिया, उसके 2 महीने के बाद ही एक नई टेक्नोलॉजी आई, ठीक है, जिसमें मेरे को बोला गया कि अगर आप 12 घंटे ये एयर कंडीशन चलाओगे फॉर 30 डेज, आपका यूनिट कंजम्पशन हो जाएगा 2000. तो 10 रुपए के रेट से मेरे को कितना बिल पे करना पड़ेगा? 2000 रुपया, राइट? डू यू थिंक आई विल कंटिन्यू विद दिस एयर कंडीशन? मैं क्या ये एसी के साथ कंटिन्यू करूंगा कि इसको बेच के नया वाला खरीदूंगा? टेल मी, व्हाट विल आई डू? नया खरीदूंगा. क्यों नया खरीदूंगा? बिकॉज देयर इज अ सब्सटैंशियल सेविंग्स इन कॉस्ट, राइट? बिकॉज ऑफ सब्सटैंशियल सेविंग इन कॉस्ट अब क्या हो गया? एक नई टेक्नोलॉजी आई और इस नई टेक्नोलॉजी के वजह से जो पुराना मशीन था वो यूजलेस हो गया. तो हैज देयर बीन अ रिडक्शन इन द बेनिफिट्स? यस. सो दैट इज व्हाई आल्सो डेप्रिसिएशन इज
प्रोवाइडेड। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि आज से कुछ साल पहले क्वार्टी कीपैड मोबाइल फोन्स चलते थे। अभी कौन से मोबाइल फोन चल रहे हैं? स्मार्टफोन, टच स्क्रीन, राइट। सो जो मशीन क्वार्टी कीपैड फोन्स बनाते थे और जो मशीन स्मार्टफोन्स बनाते हैं, दोनों में डिफरेंस है, राइट। सो डू यू थिंक दैट अभी क्वार्टी कीपैड वाले मशीन यूज होंगे? नहीं होंगे ना। कौन से मशीन यूज होंगे? स्मार्टफोन बनाने वाले। सो हैज देयर बीन अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ दीज मशीन्स? यस, बिकॉज फिजिकल कैपेबिलिटी तो है, ये क्वार्टी कीपैड वाला मशीन में और 10 साल तक यूज कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसका डिमांड ही नहीं है मार्केट में, तो मैं यूज क्या करूंगा? बिकॉज देयर इज अ चेंज इन दी टेक्नोलॉजी इन दी मार्केट। सेकेंड फैक्टर इस केस में कौन सा इंप्लाई हो गया? मार्केट चेंजेस। अब बोला यार मार्केट चेंजेस के वजह से कैसे मेरा एसेट डेप्रिशिएट हो जाएगा? सिमिलर एग्जांपल व्हिच आई गेव यू, if there is no demand for QWERTY keypad phones in the market, will I produce the QWERTY keypad phones? No. तो QWERTY keypad phones को प्रोड्यूस करने के लिए जो मशीनरी मैंने ली है, is it useful to me today? No. Has the value of these machinery depreciated? Yes, right. So these are the various factors because of which depreciation is computed, right. ये factors के वजह से depreciation generate होता है या create होता है, राइट। सो व्हाट इज डेप्रिसिएशन? इट इज अ मेजर ऑफ वेयरिंग आउट। वेयरिंग आउट किस तरह से होगा? वेयरिंग आउट यूज से भी हो सकता है, इफ्लक्शन ऑफ टाइम से भी हो सकता है। अगर हम किसी एसेट को यूज करते रहे तो उसमें नॉर्मल वेयर एंड टेयर होगा। अगर हम किसी एसेट को ऐसे ही पड़ा रख दे, यूज नहीं करें, तब भी उसमें नेचुरली नॉर्मल वेयर एंड टेयर होगा, राइट। कंजम्पशन किस तरह से होगा? Again, because of use, if we are using the asset, what will happen? The capability of the asset will keep on getting consumed, right. And other losses will be because of obsolescence in technological changes and market changes. So in simple sense, what is depreciation? Depreciation is a measure of what? Wearing out, consumption or other loss. In what? In the value of a depreciable asset, right. ये किस तरह से कॉज होता है? हाउ इज दिस लॉस इन द वैल्यू ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट कॉस्ट? इट इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ यूज, इफ्लक्शन ऑफ टाइम एंड ऑब्सोलेंसेस। यूज का मतलब क्या? हम इस एसेट को यूज कर रहे हैं इतने टाइम से, इसलिए इसमें डेप्रिसिएशन हो रहा है, इसलिए इसकी कैपेबिलिटी वर्किंग कम हो रही है। सेकेंड, पड़ा पड़ा भी तो एसेट खराब हो जाएगा ना। समझ लो आप कोई गाड़ी खरीदते हो और उसको 3 साल तक ऑन ही नहीं करते हो, विल इट स्टार्ट आफ्टर 3 years? नो, इट विल नेवर स्टार्ट आफ्टर 3 years. देन ऑब्सोलेंसेस मतलब क्या? अभी क्या है कि इस इकोनॉमी में, इन द करंट वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग वेरी फास्ट, राइट। सो इफ द टेक्नोलॉजी चेंजेस, अगर पुराना एसेट को बनाने के लिए, पुराने प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो बैकअप मटेरियल या एसेट्स है वो ऑब्सोलीट होता जाएगा, बिकॉज नए नए इन्वेंशंस आते रहेंगे। मार्केट चेंजेस मतलब अगर मार्केट में किसी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है तो उसको बनाने के लिए जो एसेट्स होते हैं वो भी कोई काम के नहीं रहेंगे, राइट। सिंपल सेंस, जैसे कि पहले वी हैड अ वीसीआर, नाउ वी हैव अ डीवीडी प्लेयर। पहले हम लोगों के पास वो रिकॉर्डेड सीडी होती थी, राइट। नाउ वी हैव दिस सीडी डिस्क। तो जो पुराने प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हुए आउट ऑफ द मार्केट, उनसे रिलेटेड जो एसेट्स थे उनको बनाने के लिए उसकी भी तो वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई, राइट। सो बिकॉज ऑफ दीज रीजन देयर आर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एंड मार्केट चेंजेस के वजह से भी डेप्रिसिएशन होता है। आई यू एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन? बट डेप्रिसिएशन समझने के लिए, ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट जो मेरे को समझना पड़ता है वो है फिक्स्ड एसेट। कैन समबडी टेल मी व्हाट इज अ फिक्स्ड एसेट? What is a fixed asset? What is an asset? बोलो बोलो, इट इज नॉट जस्ट वन वे प्रोसेस के मैं बोलता रहूंगा और आप लोग मूवी देखते रहोगे। यू हैव टू पार्टिसिपेट। टेल मी व्हाट्स अ फिक्स्ड एसेट और व्हाट इज एन एसेट? Fixed asset is something which is readily converted into cash. She's nodding her head like this. Huh? So fixed assets means the asset which is used for a longer period of time. Okay. देखो. So fixed assets are those assets which are used for production and. ठीक है. See, सबसे पहले asset समझते हैं. Asset क्या होता है?
asset is something which will result into inflow of cash or benefits in future, right? अगर खाली asset की बात करें तो asset क्या है? Asset is something which will result in inflow of cash or benefits in future, right? Asset is something which will result in inflow of cash or benefits in future, right? Asset क्या होता है? Something which will result in inflow of cash or benefits in future. मतलब asset ऐसी चीज है जो फ्यूचर में या तो कैश में कन्वर्ट हो जाएगी या तो हमारे लिए कोई बेनिफिट लेकर आएगी. That is known as an asset, right? So if I talk about stock या inventory, is it an asset? Yes. Why? Because it will get converted into cash in future. If we talk about our debtors, are these assets? Yes, these are assets. Why? Because it will get converted into cash in future, right? अगर हम लोग बात करते हैं अपने फिक्स्ड assets की, फिक्स्ड assets मतलब अगर नाम में ही asset है तो वो asset तो है ही, but will these assets get converted into cash in future? No. Why? बिकॉज फिक्स्ड एसेट्स को बेचने के लिए थोड़ी ना लिया है हमने. फिक्स्ड एसेट्स को तो हम यूज करेंगे अपने बिजनेस में. अगर फिक्स्ड एसेट्स को हम लोग यूज करेंगे अपने बिजनेस में तो हमें क्या मिलेगा? बेनिफिट्स. समथिंग लाइक एज आई टोल्ड यू दैट दिस एयर कंडीशनर व्हिच इज इंस्टॉल्ड इन माय क्लास, इट्स अ फिक्स्ड एसेट फॉर मी. इज इट रिजल्टिंग इनटू इनफ्लो ऑफ कैश? कि हवा खाओ पैसे दो, पैसा तो हो नहीं रहा है ना, बट इज इट रिजल्टिंग इनटू सम बेनिफिट टू मी? Yes, students are coming, they are sitting, they are comfortable if the AC is on, the efficiency of the class is good, right? So is it resulting into benefits? Yes, right? So asset वो चीज है या तो वो कैश में रिजल्ट करेगा फ्यूचर में या तो वो बेनिफिट में रिजल्ट करेगा फ्यूचर में. नाउ वी टॉक अबाउट फिक्स्ड एसेट. फिक्स्ड एसेट मतलब व्हेन वी से फिक्स्ड मतलब फिक्स का मतलब क्या? व्हेन यू आर स्टक एट समथिंग. तो फिक्स्ड एसेट का मतलब क्या? एक बार ले लोगे ना तो फिर जल्दी से इसको बेचोगे नहीं, इसको यूज ही करते रहोगे, राइट? सो व्हेन वी टॉक अबाउट फिक्स्ड एसेट, व्हाई डू वी कॉल इट फिक्स्ड एसेट? बिकॉज एक बार अगर हम इसको खरीद लेंगे ना तो उसको फिर जल्दी से निकालेंगे नहीं, इसको हम अपने बिजनेस में यूज करते रहेंगे, राइट? सो व्हाट आर फिक्स्ड एसेट्स? फिक्स्ड एसेट्स आर दोज एसेट्स which will be used in our business for a longer period of time and it will result in enduring benefits in future. अब लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम मतलब क्या होता है? 10 साल, 15 साल, 20 साल. बोला कि भाई एक साल से ज़्यादा अगर कोई चीज़ आपको बेनिफिट देती है तो उसको आप क्या मानोगे? फिक्स्ड एसेट मानोगे. आप फिक्स्ड एसेट को क्या करोगे? आप उसको यूज़ करोगे अपने बिजनेस में, राइट? विच विल हेल्प यू इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच यू आर rendering. मतलब let's say this podium, this projector, this document camera, the camera which is installed, benches, etc. everything is a fixed asset for me. Why? Because it is helping me in the service which I am rendering. What is it incurring me? It is incurring me benefits, right? तो fixed asset क्या है? Fixed asset वो चीज है which is held for use. सबसे important चीज क्या? Fixed asset क्या है? It is held for use, right? So what is a fixed asset? Fixed asset is something which is held for use. In ordinary course of business, right? What is fixed asset? Fixed asset is something which is held for use in ordinary course of business and which will result in enduring benefits in future, right? Which will result in benefits in future. और एक बात याद रखना, फिक्स्ड एसेट का अकाउंटिंग के लिए भी देयर इज एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. डू यू नो व्हिच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विद फिक्स्ड एसेट्स? व्हिच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विद फिक्स्ड एसेट्स?
Accounting Standard 10 issued by ICAI provides us, right, the rules in relation to accounting for fixed assets. राइट ये ASB नाम याद रखने जितने हम कर रहे हैं MCQ क्वेश्चन में वो लोग बहुत बार पूछ भी लेते हैं कि कौन सा AS किस चीज़ को डील करता है राइट सो वट एवर AS आई एम राइटिंग यू हैव टू रिमेंबर बाय डिफॉल्ट राइट AS 6 कौन सा है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग AS 10 कौन सा है अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स राइट तो फिक्स्ड एसेट क्या चीज़ है इट इज़ हेल्ड फॉर यूज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस रिजल्ट्स इन बेनिफिट इन फ्यूचर राइट सो यार मेरे को एक बात बताओ आप इफ आई टेल यू व्हाट इज फर्नीचर फिक्स्ड एसेट्स वेरी गुड व्हाट इज प्लांट एंड मशीनरी व्हाट इज अ मोटर कार रौनक फिक्स्ड एसेट्स मतलब जैसे ही आप फर्नीचर सुनोगे प्लांट एंड मशीनरी सुनोगे मोटर कार सुनोगे क्या बोलोगे इट इज फिक्स्ड एसेट बट आई एम सेइंग आई बैक टू डिफर See, if my business is let's say teaching and I am buying furniture, it is a fixed asset for me. But अगर मेरा furniture बेचने का ही business है तो is it a fixed asset for me? No. वो क्या है मेरे लिए? Stock है, right? So कोई भी item में अभी blanket answer नहीं देंगे कि भाई ये fixed asset है. First what you will have to ask what is the purpose for which we are keeping this furniture, plant and machinery or motor vehicle. If this furniture is held for use, then that is my fixed asset. If it is held for sale in the ordinary course of business, then this is my stock. Are you clear about it? अब से we are becoming better accountants, we are trying to become a better chartered accountant. कोई भी चीज़ बोलेंगे आज के बाद तो क्या बोलोगे? We have to know that why are we holding it, right? If it is held for sale, it is my stock. If it is held for use in the ordinary course of business, it is my fixed assets. So simple sense में देखो मेरे को पता चल गया fixed asset क्या होता है वो चीज़ जो हम business में use करते हैं over a longer period of time और ये चीज़ हमें benefits देती है अगर benefit देना बंद कर देगी तो fixed assets है ही नहीं because अगर benefit देगी तभी हम उसको fixed assets मानेंगे राइट सो फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है जो कि हमें लंबे समय तक बेनिफिट देता रहेगा अगर हम उसको अपने बिजनेस में यूज करते हैं राइट सो नाउ आई आस्क यू अनदर क्वेश्चन आई हैव अ बैड हैबिट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस फिक्स्ड एसेट और डेप्रिसिएबल फिक्स्ड एसेट के बीच में फिर क्या डिफरेंस हो गया आज तक तो आप लोग को पता था कि फिक्स्ड एसेट को डेप्रिशिएट कर देते हैं आराम से राइट नाउ आई एम सेइंग दैट डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन डेप्रिशिएबल fixed asset or depreciable asset. So what is the difference between a depreciable asset and a fixed asset? There are some assets which does not depreciate, right? And that is why there is a distinction between a fixed asset and a depreciable fixed asset. Can you give me an example of an asset which will not depreciate? Land, building will depreciate. Only land may not depreciate because land का value हमेशा बढ़ते रहता है और वैल्यू भी छोड़ो लैंड को हम हमेशा यूज कर सकते हैं उसका इनफाइनाइट यूजफुल लाइफ है दैट इज वाई बिकॉज मैं अकाउंटिंग में क्या बोल रहा हूँ आप वैल्यू पे मत जाओ एसेट की कैपेसिटी पे जाओ कि हम एसेट को कब तक यूज कर सकेंगे कब तक नहीं यूज कर सकेंगे बिकॉज समझ लो कि आज मैंने कोई गाड़ी ली 50 लाख रुपए में राइट अगर उसका मार्केट प्राइस 10 लाख भी हो जाता है मेरे को क्या फर्क पड़ता है मैं तो 10 साल तक वो गाड़ी यूज कर सकता हूँ सो डज इट मैटर टू मी अगर 50 से उसका 10 लाख दाम हो गया विल आई रिड्यूस इट टू 10 लाख नो आई विल तो डेप्रिशिएट इट ओवर द पीरियड आई विल यूज इट राइट सो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट व्हाइल वी आर डीलिंग विद डेप्रिसिएशन एसेट का यूजफुल कैपेसिटी राइट सो व्हाट इज डेप्रिशिएबल एसेट डेप्रिशिएबल एसेट मींस दोज एसेट्स व्हिच विल बी यूज्ड बाय अस फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर मतलब उसमें फिक्स्ड एसेट्स का कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए पर उसका लाइफ जो है वो लिमिटेड है राइट इट हैज अ लिमिटेड यूजफुल लाइफ वी विल नॉट बी एबल टू यूज इट फॉर एन इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम राइट सो व्हाट इज डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट डेप्रिशिएबल एसेट क्या है जिसको हम यूज करेंगे फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर राइट सेकंड क्या है इसमें इट हैज अ लिमिटेड यूजफुल लाइफ and the enterprise is holding it for use in its
बिजनेस. आर यू क्लियर अबाउट दिस? सो डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट का डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग, या डेप्रिशिएबल एसेट का डेफिनेशन लिखते हैं. Now understand the definition of depreciable asset. Right? So let us see how depreciable asset has been defined. Depreciable asset को कैसे define करा? मतलब ये ऐसा asset है which you are expecting to use for more than 1 year, right? So राइट. सो व्हाट इज डेप्रिशिएबल एसेट? डेप्रिशिएबल एसेट मतलब वो एसेट जिसको हम 1 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए यूज़ करेंगे. सो मोमेंट वी से दैट इफ यू यूज अ पर्टिकुलर एसेट फॉर मोर देन 1 ईयर, वो क्या बन जाएगा हमारा फिक्स्ड एसेट. राइट. मोमेंट वी से दैट अगर किसी चीज़ को हम 1 साल से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो किस कैटेगरी में क्वालिफाई हो जाएगा? फिक्स्ड एसेट्स के कैटेगरी में. बट ये फिक्स्ड एसेट ऐसा है जिसका यूजफुल लाइफ लिमिटेड है. इट डज नॉट हैव एन इनफाइनाइट और अनलिमिटेड यूजफुल लाइफ. और इसको हमने क्यों खरीदा है? वी हैव एक्वायर्ड इट फॉर यूज. हम इसको अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज में यूज करेंगे. फॉर रेंटल्स मतलब कि हमने समझो गाड़ी खरीद ली है, अब उसको हम रेंट पे दे रहे हैं, राइट, टू बी यूज. राइट. सो इट इज हेल्ड फॉर यूज. और फॉर रेंटल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस. फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस मतलब समझो कि मेरे स्टील बनाने की फैक्ट्री है, राइट. स्टील के टीएमटी बाद में बनाता हूँ. मेरी फैक्ट्री है समझो दानकुनी में, बट मेरी कॉर्पोरेट ऑफिस है कोलकाता में, राइट. सो दिस कॉर्पोरेट ऑफिस इज ऑल्सो अ फिक्स्ड एसेट फॉर मी बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस. एंड सबसे बड़ी चीज क्या? इट इज नॉट हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. राइट. तो एक बात मेरे को बताओ कि समझो कि मैंने एक मशीन खरीदा, मैंने मशीन को 3 साल तक यूज करा, बाद में अब ये मेरे को यूज नहीं करना है, राइट. नाउ आई एम होल्डिंग दिस मशीन. अभी मैंने बेचा नहीं है, आई एम होल्डिंग दिस मशीन. क्यों मैं होल्ड कर रहा हूँ? कि फ्यूचर में इसको मैं बेच दूँ. सो नाउ व्हाट हैज हैपेंड? दिस मशीन इज हेल्ड फॉर सेल. एंड अगर कोई भी फिक्स्ड एसेट is held for sale, will it qualify as a fixed asset? No, because ये standard क्या बोलता है? It is not held for sale in ordinary course of business. So if a particular asset is held for sale, it will not qualify as a fixed asset. उसको हम अपनी बैलेंस शीट में कहाँ पे डिस्क्लोज करेंगे? We will disclose it under current assets as asset held for sale, right? So अगर कोई भी fixed assets जो कि हम यूज कर रहे थे बट अब उसको हम यूज नहीं करना चाहते हैं, हमने उसको रख के रखा है, बट किस पर्पस के लिए? कि हम इसको फ्यूचर में कोई बायर आए तो उसको ये एसेट बेच दे. विल इट क्वालिफाई एज अ फिक्स्ड एसेट? नो. व्हाट विल इट क्वालिफाई एज? एसेट हेल्ड फॉर सेल. ये हम कहाँ पे डिस्क्लोज करेंगे? इन द करंट एसेट्स. जस्ट राइट इट एज अ नोट.
right? So what are we saying? If a particular fixed asset is not used, right, but is held for, but it is held to be sold in future, right, it will be classified as asset held for sale under the classification of current assets. Usually fixed asset को कहाँ classify करते हैं? Non current assets में. Hope you know the distinction of the revised schedule 3, current assets and non current assets. Fixed assets किसके अंदर जाता है? नॉन करंट एसेट्स के अंदर. बट अगर कोई एसेट को हम लोग हेल्ड फॉर सेल करा है तो वो कहाँ पे जाएगा? अंडर करंट एसेट्स एज हेल्ड फॉर सेल, राइट. फिक्स्ड एसेट्स कहाँ पे क्लासिफाई होता है? Right? Are you clear about this? Done? अब देखो और एक कॉन्सेप्ट हमको समझना पड़ेगा यार. ये डेफिनेशन है ना बहुत टेक्निकल है, क्योंकि एक डेफिनेशन करते हैं तो एक नई चीज सीखने मिलती है. डेप्रिसिएशन का करा तो क्या समझना पड़ा? डेप्रिशिएबल एसेट, राइट. अब डेप्रिशिएबल एसेट हम लोगों ने समझा, तो डेप्रिशिएबल एसेट क्या बोलता है? डेप्रिशिएबल एसेट बोलता है कि हैज लिमिटेड यूजफुल लाइफ. अब हमको क्या समझना पड़ेगा? व्हाट इज यूजफुल लाइफ? बिकॉज बोल तो दिया हैज लिमिटेड यूजफुल लाइफ, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड नाउ व्हाट डू वी मीन बाय यूजफुल लाइफ. देखो यूजफुल लाइफ क्या चीज होता है? यूजफुल लाइफ इज द पीरियड ओवर विच वी एज द ओनर ऑफ द एसेट एक्सपेक्ट टू यूज द एसेट. ध्यान से सुनना ये डेफिनेशन. लिमिटेड यूजफुल लाइफ क्या हो, सॉरी यूजफुल लाइफ क्या होता है? यूजफुल लाइफ इज द पीरियड ऑफ टाइम ओवर विच द ओनर ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स और द ओनर ऑफ द डेप्रिशिएबल एसेट्स एक्सपेक्ट्स टू यूज द एसेट, राइट. मतलब जिसने ये एसेट खरीदा है वो कितने साल इस एसेट को यूज करना चाहता है, दैट इज नोन एज इट यूजफुल लाइफ. देखो यूजफुल लाइफ है ना, दो तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. एक तो पीरियड के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं. पीरियड के टर्म में मतलब मैंने समझो एक गाड़ी खरीदी, मैंने बोला 5 साल तक इस गाड़ी को मैं यूज करूंगा. व्हाट इज द यूजफुल लाइफ ऑफ दिस कार? 5 years. समझो मैंने एक प्रिंटर खरीदा. प्रिंटर जब खरीदा तब मेरे को उसने बोला कि ये प्रिंटर 1,00,000 कॉपीज प्रिंट कर सकता है. व्हाट इज द यूजफुल लाइफ ऑफ दिस प्रिंटर? 1,00,000 copies. Can I print more than 1,00,000 copies from this printer? No. 1 साल में भी प्रिंट कर लूं कि 3 साल में भी प्रिंट कर लूं, प्रिंट कितना कर सकूंगा मैं? 1,00,000 copies. तो इस टाइप के केस में कैन वी डिफाइन यूजफुल लाइफ इन अ पीरियोडिक टर्म? नो. वी हैव टू डिफाइन यूजफुल लाइफ इन द टर्म्स ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द एसेट, राइट. तो यूजफुल लाइफ किस तरीके से डिफाइन हो सकता है? एक तो इन टर्म्स ऑफ पीरियड ओवर विच वी एक्सपेक्ट टू यूज द एसेट. दूसरा हम किस तरह से यूजफुल लाइफ को डिफाइन कर सकते हैं? द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द एसेट. बहुत सारे ऐसे एसेट्स होते हैं जिनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटेड होती है, राइट. समझो कि मैंने एक कैलकुलेटर बनाने का मशीन खरीदा, वो मशीन 50,000 कैलकुलेटर ही बना सकेगा, राइट. सो व्हाट इज द यूजफुल लाइफ ऑफ दैट मशीन? 50,000 कैलकुलेटर्स. समझो मैंने एक मशीन खरीदा, वो मशीन समझो 20,000 घंटे ही यूज हम कर सकते हैं. वी कैन नॉट यूज इट फॉर मोर देन 20,000 आवर्स. सो व्हाट इज द यूजफुल लाइफ ऑफ दैट मशीन? 20,000 आवर्स. बट मैंने एक मशीन खरीदा जिसको कि 10 साल तक हम यूज कर सकते हैं, प्रोडक्शन का कोई लिमिट नहीं है, तो उस मशीन का यूजफुल लाइफ कितना है? 10 years. Are you clear about it? तो यूजफुल लाइफ किस टर्म में डिफाइंड होगा? आइदर इन टर्म ऑफ द पीरियड ओवर विच वी कैन यूज दैट पर्टिकुलर डेप्रिशिएबल एसेट, or in terms of production units or number of hours for which that particular asset can be used. Are you clear about it? Right? तो useful life क्या है? Useful life is an estimate. What is a useful life? It is an
एस्टिमेट. एस्टिमेट क्या होता है? जब हमें पक्का पता नहीं होता तब हम उसको एस्टिमेट करते हैं ना, राइट? समझ लो कि हम लेट्स से वी आर गोइंग फॉर अ टूर टू सिंगापुर. मैंने आपको पूछा कितना खर्चा करोगे वहां पे, आपने बोला 50,000 रुपीज. सो आई यू सपोज टू स्पेंड एग्जैक्टली 50,000 रुपीज? नो. 48,000 भी हो सकता है, 52,000 भी हो सकता है. व्हाट इज दैट? 50,000. इट इज एन एस्टिमेट. अब मैंने बोला कि गाड़ी में 5 साल तक ही यूज करूंगा, राइट? तो ये एस्टिमेट हम कब करते हैं यूजफुल लाइफ का? व्हेन द एसेट इज परचेज्ड, राइट? व्हाट इज अ यूजफुल लाइफ? इट इज एन एस्टिमेट. व्हेन डू वी मेक दिस एस्टिमेट? व्हेन द एसेट इज परचेज्ड. तो मैंने जब गाड़ी खरीदी अपनी, तब मैंने बोला कि मैं इसको 5 साल तक यूज करूंगा, राइट? सो इज इट लाइक पत्थर की लकीर के भाई 5 साल से ज्यादा ना तो कम यूज नहीं करूंगा? No, I may use it for 6 years, I may use it for 7 years, I may discard it in 3rd year also, right? So what is useful life? It is an estimate, right? When do we make this estimate? When that asset is purchased. What is this estimate about? This estimate is about the period over which we will use the asset, or the number of units or the number of hours for which this asset can be used. Are you absolutely clear about the concept of useful life? Right? So let us just quickly note it down. Right? Are you clear about this? Useful life क्या है? It is an estimate, right? When is this estimate made? When the asset is acquired or purchased. उस समय हम ये estimate करते हैं. जिस समय मैं asset लूँगा, मतलब जिस समय मैं मशीनरी लूँगा, के गाड़ी लूँगा, के फर्नीचर लूँगा, तब मैं estimate करूँगा कि भाई इतने पीरियड तक मैं इसको यूज करूँगा, right? What is this estimate about? This estimate is about the period for which the asset will be used. ये किस फॉर्म में डिफाइंड होता है? नंबर ऑफ years के बेसिस पे डिफाइंड होता है, या तो फिर क्या नंबर ऑफ यूनिट्स और नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच द एसेट कैन बी यूज. मतलब टोटल कितना यूनिट्स में इससे प्रोड्यूस कर सकता हूँ, या तो कितने घंटे तक ये एसेट्स में यूज कर सकता
whom. Are you clear about this? और ये estimate कौन करता है? Who is responsible to make this estimate? The management of the company or the owner of the asset is required to make this estimate. Are you absolutely clear about this? ठीक है? अब देखो मैं आपको और एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताता हूँ इसके बारे में. ठीक है? एक चीज होता है फिजिकल लाइफ ऑफ द एसेट, दूसरा होता है यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट. हम डेप्रिसिएशन के लिए क्या यूज करते हैं? फिजिकल लाइफ के यूजफुल लाइफ? यूजफुल लाइफ. सो व्हाट इज फिजिकल लाइफ? बोलो बोलो, व्हाटएवर इज इन योर माइंड यू शुड स्पीक आउट. हाँ, फिजिकल लाइफ नहीं, यूजफुल लाइफ में भी ऑन माई ओन आई विल यूज. वेरी गुड. देखो, there is a difference between physical life and there is a difference between useful life. Physical life is the period for which the asset can be used, right? What is physical life? Physical life is the period for which the asset can be used. What is useful life? Useful life is the period for which the asset will be used. मतलब जो मैंने गाड़ी ली ना, मैंने कितने साल यूज करूंगा बोला? 5 साल. मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि 5 साल में वो गाड़ी खराब हो जाने वाली है. अगर मैं चाहूँ तो उस गाड़ी को 8 साल भी यूज कर सकता हूँ, राइट? व्हेन आई बॉट दैट कार आई आस्क्ड द मैन्युफैक्चरर कि भाई कितने साल चलेगी ये आपकी गाड़ी. उसने बोला सर 8 साल तक तो नो प्रॉब्लम. मैंने घर आके सोचा यार एक ही गाड़ी कौन 8 साल तक चलाएगा, 5 साल तक यूज करेंगे फिर चेंज कर देंगे. तो मेरे को ये गाड़ी कितने साल तक बेनिफिट देगी? 5 इयर्स. तो मैं कितने साल में इसको डेप्रिशिएट करूं? 5 इयर्स. बिकॉज मेरे को बेनिफिट कितने साल तक मिलेगा? 5 इयर्स. सो नाउ आर यू एब्सोल्युटली क्लियर? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फिजिकल लाइफ ऑफ द एसेट and the useful life of the asset. What is physical life of the asset? The period over which the asset can be used. What is useful life of the asset? The period over which we expect to use the asset, right? It is our estimate कि हम कितने साल तक ये asset use करेंगे. Depreciation करने के लिए हम क्या use करेंगे? Physical life के useful life? We will use the useful life. Are you absolutely clear about this? Just quickly note this down. Right? What is physical life? The period for which the asset can be used. Are you clear about this? Got it? Let's move on to the next concept. सबने नोट कर लिया है ना ये?
ठीक है. द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डेप्रिशिएबल अमाउंट, राइट. डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होता है? डेप्रिशिएबल अमाउंट वो अमाउंट है जिसको हम डेप्रिशिएट करेंगे, बिकॉज इट इटसेल्फ सेज ना डेप्रिशिएबल अमाउंट मतलब मेरे को डेप्रिशिएट करो, राइट. सो व्हाट इज डेप्रिशिएबल अमाउंट? द अमाउंट व्हिच नीड्स टू बी डेप्रिशिएटेड, राइट. डेप्रिशिएबल अमाउंट का मतलब क्या? अमाउंट which needs to be depreciated, मतलब जो अमाउंट को हमें डेप्रिशिएट करना है उसको हम बोलते हैं डेप्रिशिएबल अमाउंट. What is depreciable amount? Depreciable amount is the cost for which we acquire the asset less the residual value, right. What is depreciable amount? It is the cost for which we acquire the asset less the residual value of that asset. Again a new term, okay. So let us understand what do we mean by residual value. Residual value क्या होता है? सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ कि ये एक एस्टिमेट है. जैसे यूजफुल लाइफ एस्टिमेट है ना, ऐसे रेसिडुअल वैल्यू भी एक एस्टिमेट है. ये एस्टिमेट हम कब करते हैं? जैसे यूजफुल लाइफ का करते हैं वैसे ही इसको भी जब एसेट खरीदते हैं तब ये एस्टिमेट हम करते हैं. तो भाई ये किस चीज़ का एस्टिमेट है? दिस इज द एस्टिमेट कि आफ्टर द यूजफुल लाइफ. आफ्टर द यूजफुल लाइफ मतलब जब मैं एसेट को यूजफुल लाइफ तक यूज कर चुका हूँ, अगर इस एसेट को मैं बेचूंगा तो इसको बेच के मेरे को कितने पैसे रियलाइज होंगे, राइट. सो व्हाट इज द रेसिडुअल वैल्यू? रेसिडुअल वैल्यू इज द वैल्यू व्हिच वी एस्टिमेट टू रिकवर व्हेन वी डिस्पोज ऑफ और सेल द एसेट एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, राइट. सबसे ज़्यादा हम लोग एस्टिमेट आजकल कब करते हैं? मोबाइल फ़ोन लेते हैं तब ना, कि भाई अभी लिया है 6 महीने के बाद बेचेंगे तो इतना तो मिल ही जाएगा. सो व्हाट इज दैट? दैट इज रेसिडुअल वैल्यू. जब गाड़ी खरीदते हैं या बाइक खरीदते हैं तब भी एस्टिमेट करते हैं ना, अभी इतने में ले रहे हैं, 3 साल 5 साल यूज करेंगे, फिर इतने में बेच के नए वाला जो भी मॉडल होगा तब वो खरीद लेंगे. व्हाट इज दैट? रेसिडुअल वैल्यू. ये एस्टिमेट कब करते हैं? खरीदते वक्त ही कर लेते, लेते लेते ही सोचते हैं अच्छा ठीक है 25,000 दाम है, नो प्रॉब्लम, 5,000 में बेच देंगे आफ्टर अ ईयर. सो व्हेन डू वी मेक दैट एस्टिमेट? व्हेन वी आर परचेजिंग द एसेट. बट क्या आर यू श्योर के 5,000 में ही बिकेगा? नहीं, 2,000 में भी बिक सकता है, कोई अच्छा आदमी मिल गया तो 7,000 में भी बिक जाएगा. सो दैट इज व्हाई इट इज एन एस्टिमेट. आर यू क्लियर अबाउट इट? सो व्हाट इज रेसिडुअल वैल्यू? इट इज एन एस्टिमेट. कब ये एस्टिमेट करते हैं हम? व्हेन द एसेट इज परचेज. ये किस चीज का एस्टिमेट है? Right, it is an estimate of the amount the asset would realize at the end of its useful life. Are you clear? अभी तक जो भी concepts हम लोगों ने discuss करे हैं, कोई भी doubt है इसके बारे में तो just ask me, because again I'll keep on repeating the same thing. If your concepts are strong, nobody can stop you. कुछ भी आप कर सकते हो. अगर conceptually चीज़ें पता नहीं है then there is no point doing that thing, right?
ये सारे कॉन्सेप्ट्स आर एब्सोल्युटली क्लियर टू यू, राइट? सो अभी देखो हमने क्या क्या चीज समझा. हमने समझा कि डेप्रिसिएशन क्या है, राइट? डेप्रिसिएशन क्या है? इट इज अ मेजर ऑफ व्हाट? वेयरिंग आउट, कंजम्पशन और अदर लॉस इन व्हाट? इन द वैल्यू ऑफ अ डेप्रिशिएबल एसेट. डेप्रिशिएबल एसेट क्या है हमें पता है. ये लॉस किस तरीके से होता है? बिकॉज ऑफ यूज, इफ्लक्शन ऑफ टाइम और ऑब्सोलेंसेस बिकॉज ऑफ मार्केट चेंजेस और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, राइट? फिर हमने समझा फिक्स्ड एसेट्स क्या है. फिक्स्ड एसेट्स क्या है? एनी एसेट विच वी आर होल्डिंग टू बी यूज्ड इन आवर बिजनेस फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर इज अ फिक्स्ड एसेट. ये क्या करेगा? हमें बेनिफिट देगा ओवर द पीरियड वी आर होल्डिंग इट. व्हाट इज द डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट? सॉरी, डेप्रिशिएबल एसेट. डेप्रिशिएबल एसेट इज अ फिक्स्ड एसेट बिकॉज इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है? मोर देन 1 ईयर. बट इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसकी जो यूजफुल लाइफ है वो लिमिटेड है. इस एसेट को हम इनफाइनाइट पीरियड तक यूज नहीं कर सकते. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज डेप्रिशिएबल एसेट. Then we understood what is useful life. What is useful life? It is an estimate. Estimate of what? Estimate कि भाई ये पर्टिकुलर एसेट जो हमने लिया है वो हम कितने पीरियड तक यूज करेंगे, या हम इसको कितना प्रोडक्शन या कितने आवर्स तक यूज कर सकते हैं. ये एस्टिमेट हम कब करते हैं? जब हम एसेट खरीदते हैं तब करते हैं. ये एस्टिमेट कौन करता है? मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी और द ओनर ऑफ द एसेट. फिर डेप्रिशिएबल अमाउंट हमने समझा. डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या है? वो अमाउंट जिसको हम डेप्रिशिएट करेंगे, राइट? देन डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होता है? डेप्रिशिएबल अमाउंट इज कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू. व्हाट इज रेसिडुअल वैल्यू? रेसिडुअल वैल्यू इज एन एस्टिमेट. हु मेक्स दिस एस्टिमेट? मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. कब करते हैं ये एस्टिमेट? जब एसेट को खरीदते हैं तब करते हैं ये एस्टिमेट. ये एस्टिमेट किस चीज का है? कि कितना पैसा हम रियलाइज कर लेंगे जब जो एसेट हमने खरीदा है उसको हम बेचेंगे एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ. आर यू क्लियर? नाउ व्हाट वी विल अंडरस्टैंड इट, राइट? हाउ डू वी कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एंड व्हाई डू वी कैलकुलेट डेप्रिसिएशन. ठीक है, इतना सारा तो हमने समझ लिया. अब ये भी तो समझना पड़ेगा कि भाई डेप्रिसिएशन कंप्यूट करना क्यों है. व्हाई डू वी नीड टू कंप्यूट डेप्रिसिएशन. अब देखो अकाउंट से कुछ कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को मैं बताता हूँ विच यू ऑलरेडी नो, राइट? स्मार्ट पीपल. सी व्हाट वी नीड टू नो इज कि हम लोग कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करते हैं? मैचिंग प्रिंसिपल. मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर हम कुछ रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं तो वो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कोई कॉस्ट इनकर हुआ है तो वो भी हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए, राइट? इफ वी आर अर्निंग रेवेन्यू बाय इनकरिंग सम कॉस्ट वी शुड आल्सो रिकॉग्नाइज सच कॉस्ट, राइट? तो समझ लो कि यू आर गिविंग मी द फीस, सो दैट इज माय रेवेन्यू. अब ये रेवेन्यू अर्न करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो बोल रहा हूँ दैट्स अ सेपरेट थिंग, but the AC is on, the projector is on, you're sitting on the table, etc. Everything is getting used. All my fixed assets are getting used. So are these assets contributing towards generation of the revenue? Yes, these assets are contributing towards generation of revenue. तो इसका क्या कॉस्ट मेरे को रिकॉग्नाइज करना चाहिए इन माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? यस, बिकॉज देखो एक बात समझो, जब हम फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं तब हम एंट्री क्या पास करते हैं? आई नो एवरी ईच वन ऑफ यू नो फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक. अब ये फिक्स्ड एसेट जो हमने फिक्स्ड एसेट डेबिट टू कैश और बैंक करा है, ये फिक्स्ड एसेट कहाँ पे चला जाता है? बैलेंस शीट में एकदम टॉप में जाके बैठ जाता है. दैट्स आई एम द किंग, आई एम द फिक्स्ड एसेट, राइट? सो आर वी रिकॉग्नाइजिंग समथिंग इन द पीएल इन रिलेशन टू दिस व्हेन इट इज परचेज्ड? नो. सो बात समझो, हम लोग डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हैं. समझो कि मैंने ईयर 1 में एक मशीन खरीदा जिसका के कॉस्ट था 5 लाख रुपया, राइट? व्हाट डिड आई डू? आई परचेज्ड सम प्लांट एंड मशीनरी जिसका कॉस्ट कितना था? 5 लाख रुपया. जब मैंने खरीदा मैंने एंट्री क्या करी? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक. अब ये कहाँ पे जाके बैठा हुआ है? बैलेंस शीट में. बैलेंस शीट में कितने रुपए पे आ रहा है अभी? जब मैंने खरीदा तब 5 लाख रुपए. ये समझो 5 लाख का जो एसेट है ना, मैंने ईयर 2 में यूज करा, 3 में यूज करा, 4 में यूज किया, 5 में भी यूज किया. ईयर 5 में यूज करने के बाद मैंने बोला कि भाई अब इस एसेट को यूज नहीं कर सकते, अब हमें इसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा. और ये एसेट हम लोगों ने बेच दिया फॉर ₹1 लाख इन द 5th ईयर, राइट? आर यू क्लियर? तो अगर देखो फर्स्ट ईयर में हम इसको बैलेंस शीट में डालेंगे,
लास्ट जो 5th ईयर है उसमें हम इस एसेट्स को बेच दे रहे हैं, राइट। सो हम क्या करेंगे, अगर लास्ट ईयर में मेरे को कितने का लॉस हो गया, 4 लाख रुपए का लॉस हुआ ना, 5 लाख में खरीदा था, 1 लाख में बेचा, तो हम क्या करेंगे 5th ईयर में लॉस रिकॉग्नाइज कर लेंगे कितने का, 4 लाख, विच इज व्हाट 5 लाख माइनस 1 लाख। अगर आप सोच के देखो तो ये क्या सही लग रहा है आपको? ईयर 1 में कोई खर्चा नहीं हुआ, पूरे 5 साल तक यूज कर लिया, और पूरा 4 लाख रुपए का लॉस हमने 5th ईयर में पीएल में डाल दिया। विल इट शो अ ट्रू एंड फेयर पोजीशन ऑफ माय प्रॉफिट्स अर्न ड्यूरिंग द ईयर? नो। व्हाई विल इट नॉट शो? बिकॉज ये जो 5 लाख रुपए का एसेट था जो मैंने खरीदा था, वो क्या मैं खाली 5th ईयर में यूज कर रहा हूं क्या? नहीं, ये तो मैं ईयर 1 में भी यूज कर रहा हूँ, ईयर 2 में भी यूज कर रहा हूँ, 3 में भी यूज कर रहा हूँ, 4 में भी यूज कर रहा हूँ, और 5 में भी यूज कर रहा हूँ। तो क्या इस एसेट का बेनिफिट मेरे को 5 साल तक मिला है? मिला है। इस बेनिफिट के वजह से मेरा कुछ रेवेन्यू जनरेट हुआ होगा? डेफिनेटली हुआ होगा। तो क्या इसका कॉस्ट मेरे को खाली लास्ट ईयर में रिकॉग्नाइज करना चाहिए, कि मेरे को इसको पूरे 5 साल के बीच में स्प्रेड करना चाहिए? What should we do? पूरे 5 साल, बिकॉज ये एसेट बेनिफिट कितने साल तक दे रहा है? 5 साल तक। तो इसका कॉस्ट तो मेरे को 5 साल के ऊपर रिकॉग्नाइज करना चाहिए ना। अगर 5 साल के ऊपर मैं ये बेनिफिट रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा, कॉस्ट रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा, तो डू यू थिंक माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल शो अ ट्रू एंड फेयर व्यू? नो, माय प्रॉफिट्स विल बी डिस्टॉर्टेड। पहले 4 साल में प्रॉफिट का नंबर ज्यादा आएगा, लास्ट साल में जाके प्रॉफिट का नंबर एकदम बैठ जाएगा, राइट। सो दैट इज व्हाई फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है डेप्रिसिएशन को चार्ज करने का, that we should match the cost to the relevant benefits which we are deriving by the use of the asset. That is why some portion of the cost of the asset should be charged to the profit and loss account in form of depreciation every year. Are you clear about this? Depreciation charge करने का what is the point? The point is it will show us the true and fair position of the profits or losses for the year. तो फर्स्ट पॉइंट क्या आप लोग समझे, कि अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रू पोजीशन दिखाई देगा। आर यू क्लियर अबाउट दिस? सेकंड, बहुत लोगों ने सुना होगा कि आप लोग को पता भी होगा कि डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने से फंड क्रिएट होता है, जब हम एसेट बेचते हैं तो हम उसको यूज कर सकते हैं। हैव यू हर्ड अबाउट दिस? That depreciation is charged to provide funds so that asset can be replaced at the end of its useful life. सुना होगा आप लोगों ने। So what is the second objective of charging depreciation? It will provide for funds to replace the asset at the end of its useful life. अब ये funds कैसे create हो जाएगा भाई, बताओ तो मेरे को। How will the funds be created? By charging depreciation. वेरी गुड। व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, कि अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ना, तो एक रिजर्व क्रिएट होगा एट द एंड ऑफ एवरी ईयर विच कैन बी यूज्ड टू रिप्लेस द एसेट एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, राइट। सिंपल समझने की कोशिश करो। तो मैं इस एग्जांपल को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे समझो 5th ईयर में कुछ भी एसेट ये रियलाइज नहीं करता है, राइट। सो मैंने कितने साल तक ये एसेट यूज करा? 5 साल तक। इसका कॉस्ट कितना है? 5 लाख। तो हम क्या करेंगे, एवरी ईयर 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे, राइट। तो 5 साल में 5 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा। आर यू क्लियर अबाउट दिस? तो देखो ये फंड कैसे क्रिएट करेगा इन द कंपनी, देखो हम लोग समझने की ट्राई करते हैं, ठीक है। हाउ विल द फंड बी क्रिएटेड, ठीक है। समझ लो कि मेरी कंपनी का सेल्स है 10 लाख रुपया, एक्सपेंसेस है समझ लो 4 लाख रुपया, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 6 लाख। व्हाट इज द प्रॉफिट? 6 लाख। ये जो एक्सपेंस है इट इज एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन, राइट। दिस एक्सपेंस इज एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन। तो अगर 6 लाख रुपया हमारे कंपनी का प्रॉफिट है, हम डिविडेंड कितना दे सकते हैं शेयर होल्डर्स को? How much dividend can we give? Entire 6 lakh rupees, because profit belongs to the owners of the company, right? So हम लोग कितना dividend दे देंगे?
6 लाख रुपीज, या पार्टनर्स में कितना डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 6 लाख रुपीज, राइट। सो कंपनी में क्या बच गया 0, 6 लाख का प्रॉफिट कमाया, 6 लाख शेयर होल्डर्स में या पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आर यू क्लियर अबाउट दिस? यहाँ पे क्या हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है? नहीं किया है। अब सिमिलर सिनेरियो देखो, मैंने यहाँ पे लिखा कि अपना सेल्स कितना है 10 लाख, एक्सपेंसेस कितने हैं 4 लाख, मैंने लिखा डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन वी ऑल नो इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस। डेप्रीसिएशन में तो कोई कैश जा नहीं रहा है ना, जब एसेट खरीदा तब कैश चला गया था। अभी जब डेप्रीसिएशन हर साल चार्ज करते हैं तब क्या कैश जाता है? नहीं जाता है। इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस, देयर इज नो आउटफ्लो ऑफ कैश व्हेन वी चार्ज डेप्रीसिएशन। कितना डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे हम लोग हर साल? 1 लाख। हमने बोला था ना 1 लाख करके 5 साल में चार्ज कर देंगे। सो अभी हमारा प्रॉफिट कितना है 5 लाख। डिविडेंड कितना दे सकेंगे 5 लाख। कंपनी में बच कितना गया पैसा 1 लाख। सी नथिंग हैज चेंज। कैश कितना आया 10 लाख, कैश कितना गया 4 लाख। तो हमने एक्चुअल में कैश प्रॉफिट कितना कमाया 6 लाख, उसमें से 1 लाख का डेप्रीसिएशन माइनस कर दिया। डेप्रीसिएशन की वजह से कोई कैश गया क्या हमारा? नहीं, इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया 5 लाख। हमने डिविडेंड कितना दे दिया 5 लाख। कंपनी में बच कितना गया 1 लाख रुपया ऑटोमेटिकली बच गया। अगर 5 साल तक हम लोग सेम चीज करेंगे तो कंपनी में कितना पैसा बच जाएगा 5 lakh rupees, which can be used to replace the asset. Are you clear about this concept? समझ में आया ना? Clear? So that is why depreciation जब हम चार्ज करते हैं ना, एक रिजर्व ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। रिजर्व कैसे क्रिएट हो जाएगा? डेप्रीसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, इसको अगर हम प्रॉफिट से माइनस कर देंगे तो हम प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कम हो जाएगा। अगर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कम हो जाएगा तो हम डिस्ट्रीब्यूट कम करेंगे और ऑटोमेटिकली डेप्रिसिएशन का पैसा हमारे कंपनी में रिटेन हो जाएगा। आर यू क्लियर अबाउट दिस? राइट। सो व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन? द की ऑब्जेक्टिव ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन इज फर्स्ट टू डिटरमाइन द ट्रू पोजीशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस अर्न ड्यूरिंग द ईयर। सेकेंड क्या ऑब्जेक्टिव है? इट प्रोवाइड्स फंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है? कैन समबडी टेल मी व्हाट इज द थर्ड ऑब्जेक्टिव? और एनी थर्ड फोर्थ क्या होता है? व्हाट कुड बी द अदर रीजन व्हाई वी आर चार्जिंग डेप्रिसिएशन? Asset is appearing at the value it is supposed to give or benefit, right? Asset हम लोग depreciate करते हैं। Depreciate क्यों करते हैं? Because asset का consumption capacity, asset का जो value देने का capacity है वो कम होता रहता है over the period। तो हम क्या करते हैं? Simultaneously asset का भी value minus करते रहते हैं। Because depreciation हम किससे deduct करते हैं? एसेट में से डिडक्ट करते हैं। तो जैसे जैसे एसेट का कैपेबिलिटी बेनिफिट देने का कम होते जाता है वैसे वैसे हमारे बैलेंस शीट में हम उस एसेट का वैल्यू भी कम करते रहते हैं। आर यू क्लियर अबाउट दिस? तो 3 मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ डेप्रिसिएशन इज, राइट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव? टू डिटरमाइन द ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस पोजीशन, सेकंड टू प्रोवाइड फंड्स फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, थर्ड the fixed assets or the depreciable assets are reflected at their value in use in the business. Are you clear about this? अब देखो depreciation चार्ज करने के लिए हमें क्या क्या information की ज़रूरत होती है। Let us understand what are the things which we need to know while we are charging depreciation. ठीक है? depreciation चार्ज करने के लिए हम लोग को सबसे पहले तो क्या चाहिए? asset का cost चाहिए। फिर हमें क्या चाहिए? रेसिड्यूअल वैल्यू चाहिए। और फिर हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए उसका यूजफुल लाइफ, राइट? सो दीज आर द की थिंग्स विच वी रिक्वायर इन ऑर्डर टू ascertain depreciation, right? We would require the cost, we would require the depreciation, and we would require the useful life of the asset, right? अब हम लोग क्या देखते हैं,
अब हम लोग देखेंगे व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रीसिएशन. व्हाट विल वी सी? व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रीसिएशन. ठीक है. Right, so these are the things which are required to calculate depreciation. अब अगर हम लोग calculate की बात कर रहे हैं तो there are various methods which can be used for the calculation of depreciation. Right, अलग अलग method का use करके हम depreciation का amount calculate कर सकते हैं. So let us see what are the various methods for calculating depreciation. Right, so देखो यहाँ पे कितने methods बोले गए हैं. Methods for providing depreciation. First is straight line method, second is reducing balance method, third is sum of digits method, fourth is machine hour rate, fifth is production unit method, then we have depletion method, we have sinking fund method and we have annuity method. बोलते बोलते ही थक गए ना. So do we need to know all of these? Yes, of course. यहाँ पे है तो जानना तो पड़ेगा ही सब कुछ, right? So now we'll become expert in depreciation accounting. सोचो इतने सारे methods हम लोगों को आ जाएंगे, right? So what will we learn? We'll learn how to calculate the amount of depreciation to be charged. देखो, there's a clear-cut distinction between method of calculating depreciation and the method of accounting. ठीक है? Method of charging depreciation और method of accounting दोनों ही एकदम अलग चीज है. Right, so when we are talking about method of calculating depreciation, मतलब method of calculating depreciation will tell us the amount of depreciation to be charged. Right, अभी हम लोग accounting कैसे करनी है, क्या journal entry करनी है, उसकी बात ही नहीं करेंगे जब तक मैं आप लोगों को बोलूँ ना. Right, so accounting भूल जाना. अभी हम क्या करेंगे? मैथ्स करेंगे, because calculations तो मैथ्स के अंदर करते हैं ना. तो अभी what we'll do maths. What will we do? We'll calculate the amount of depreciation which is to be charged. Are you clear about this? So let us start on with the first method of calculating depreciation, which is the straight line method. Right, what is the first method? Straight line method. This is also known as the fixed installment method. इस method का क्या characteristics है? ये method है ना, बहुत सीधा method है. ये बोलता है कि भाई आप सेम अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन चार्ज करो ड्यूरिंग ऑल द इयर्स ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट. मतलब एक बार अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करो और सालों साल तक उसको यूज करते रहो. राइट, सो स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होगा? द अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन रिमेन्स कांस्टेंट ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट. राइट, amount of depreciation will remain constant over the useful life of the asset. Right, so let us look at this. मतलब हर साल जो डेप्रीसिएशन हम चार्ज करेंगे वो अमाउंट सेम रहेगा. ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, जो हम डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं वो टाइम प्रपोर्शन बेसिस में चार्ज होता है. सो व्हेन आई टॉक अबाउट टाइम प्रपोर्शन बेसिस का मतलब क्या? जितने महीने या जितने दिन हमने एसेट को यूज करा है ड्यूरिंग द ईयर, उतने ही महीने या उतने ही दिन का डेप्रीसिएशन हम चार्ज करेंगे. ये प्रॉब्लम कब आएगी? जब एसेट, जिस ईयर में हम एसेट खरीदते हैं उस साल में आएगी, या तो जिस साल में हम एसेट बेचते हैं उस साल में आएगी. क्यों? क्योंकि इट इज नॉट नेसेसरी दैट आई विल ऑलवेज परचेज माई एसेट ऑन 1st of April. आई मे परचेज इट ऑन एनी डे ड्यूरिंग द ईयर. राइट, तो समझो कि अगर मैंने 1st October में एसेट को खरीदा
तो मैं उस साल में कितने महीने तक एसेट को यूज करूंगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो डेप्रिसिएशन कितने महीने का चार्ज करूंगा, 6 महीने का, राइट। सो फर्स्ट ईयर में प्रॉब्लम आएगी जिस साल में हम एसेट खरीदते हैं, अगर हम उसको 1 अप्रैल में नहीं खरीदते और किसी दिन खरीदते, तो जितने दिन तक हमने यूज करा था ड्यूरिंग द ईयर उतने दिन का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। सिमिलरली जिस साल में हम एसेट को बेचते हैं उस साल में क्या फर्स्ट दिन ही बेच देंगे, नहीं, कभी भी बेच सकते हैं। तो उस साल में क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर से लेकर जिस दिन हमने एसेट को बेचा है उस दिन तक का डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना पड़ेगा, राइट। We'll also see this over the period of time, but just please remember that depreciation is charged on time proportion basis. What do we mean by time proportion basis? Time proportion basis का मतलब जितने दिन या जितने महीने हमने एसेट को यूज करा है ड्यूरिंग द ईयर उतने ही दिन उतने ही महीने का डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करके चार्ज करेंगे। क्लियर? Now let's again move on to the straight line method. Straight line method क्या बोलता है कि amount of depreciation will remain constant during the useful life of the asset. अब straight line method से depreciation कैसे निकलेगा? Depreciation is equal to cost of asset minus residual value divided by useful life, right? सिंपल फंडा है, क्या है, कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस रेसिड्यूल वैल्यू डिवाइडेड बाय द यूजफुल लाइफ, दिस विल गिव मी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज्ड। अगर टाइम प्रपोर्शन हमें करना है इसको तो हम क्या करेंगे, divided by 365 or 366 or 12 and number of days or number of months. Are you clear? ये तो सिंपल चीज है, राइट। अगर टाइम प्रपोर्शन करना है तो into number of days or months for which we have used the asset divided by 365 or divided by 12, जिस बेसिस पे भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। क्लियर? सो एक सिंपल इलस्ट्रेशन लेते हैं और देखते हैं। समझ लो कि कॉस्ट ऑफ एसेट ₹5 लाख, रेसिड्यूल वैल्यू कितनी है, समझ लो 50,000, यूजफुल लाइफ कितनी है, समझ लो 5 साल, right? So what is the information given to us? The information says cost of the asset is 5 lakh, residual value is 50,000, useful life is 5 years. किस तरह से करेंगे depreciation calculate? Depreciation is equal to cost which is 5 lakhs minus residual value which is 50,000 divide by useful life which is 5 years. तो हर साल कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, 90,000. Are you clear? देखो इसका लॉजिक मैं बताऊं, कोई मेरे को बता सकता है कि मैं 1 लाख रुपया क्यों चार्ज नहीं कर रहा हूं जबकि 5 लाख का एसेट है और मैं 5 साल तक ही यूज कर रहा हूं, तो मैं 90,000 क्यों चार्ज कर रहा हूं? 1 लाख नहीं करना चाहिए क्या चार्ज मेरे को? वेरी गुड। देखो what are we trying to say? Are you done with this computation? फिर मैं लॉजिक समझाता हूँ। Are you done with this computation? देखो 90,000 करके हम कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 5 साल में, 4.5 लाख रुपया, प्लस ये एसेट को बेचेंगे तो कितना रुपया रिकवर हो जाएगा, 50,000। डेप्रिसिएशन चार्ज करने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये फंड प्रोवाइड करेगा एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ टू रिप्लेस द एसेट। क्या फंड प्रोवाइड हो गया पूरे 5 लाख का? यस, राइट। इसलिए हम लोग डेप्रिशिएबल अमाउंट को अमोर्टाइज करते हैं क्योंकि बाकी जो रेसिड्यूल वैल्यू है वो तो एसेट को बेच के मिल जाने वाला है ना। तो हमने वैल्यू कितने की यूज करी, 4.5 लाख रुपए की, बिकॉज 5 लाख में लिया था, 50,000 तो एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ मिल जाएगा। तो मेरा एक्चुअल एक्सपेंस कितना है, 4.5 लाख। तो उस 4.5 लाख को हमने 5 साल के बीच में डिवाइड करके चार्ज
कर लिया। आर यू क्लियर अबाउट दिस? एब्सोल्युटली राइट। कितने में एसेट खरीदा था? 5 लाख। एसेट को बेच के कितना पैसा मिल जाएगा? 50,000। तो एक्चुअल खर्चा कितना हुआ? 4.5 लाख। 4.5 लाख का एसेट कितने साल तक यूज करेंगे? 5 years। तो एवरी ईयर कितना चार्ज करेंगे? 90,000। 90,000 इंटू 5, 4,50,000 प्लस बेचेंगे तो 50,000 मिलेगा, तो 5 लाख रुपए हो गए ना हमारे पास एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। आर यू क्लियर अबाउट दिस? अब देखो, बहुत बार सब में ये लोग क्या कर सकते हैं ना, हमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट बता देंगे, हमें एसेट का कॉस्ट बता देंगे और बोलेंगे कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमें बताओ, राइट? सो देखो, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू 100। ठीक है, डेप्रिसिएशन रेट इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू 100। सो देखो, डेप्रिसिएशन कितना है? 90,000। कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है? 5 lakh and not 4,50,000. What are we talking about? Cost of asset. What is the cost of asset? 5 lakh into 100 कितना आ रहा है परसेंटेज? जल्दी से बताओ। This reminds me of a very important thing. I'll tell you. 18%. Are you clear? तो 18% किसके ऊपर चार्ज करेंगे एवरी ईयर? 5 लाख के ऊपर। मतलब जब भी परसेंटेज दिया हुआ है, आप रेसिड्यूल वैल्यू को कम नहीं करोगे, परसेंटेज आप डायरेक्टली कॉस्ट के ऊपर कंप्यूट करोगे, बिकॉज हम परसेंटेज किसके बेसिस पे लेकर आते हैं? कॉस्ट के बेसिस पे। तो सम में जब भी मेरे को परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन दिया रहेगा, तब हम क्या करेंगे? डायरेक्टली उसको कॉस्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे। वी विल नॉट रिड्यूस द रेसिड्यूल वैल्यू। ठीक है? द थिंग विच आई लेट्स से थॉट ऑफ वाज कि कितने लोग आप लोग कैलकुलेटर नहीं लेकर आते हो? डज एवरीबडी हैव अ कैलकुलेटर? सी, यू मे हैव इट। आई ऑलवेज यूज्ड टू से इन स्कूल कि भाई कैलकुलेटर तो है, तो बोलता है निकाल, तो बोलता था घर पे है तो सही। सो ऐसा नहीं चाहिए। The calculator has to be in class and you have to use that same calculator which you will be using it in the exam. मेरे को इस लेवल की एफिशिएंसी चाहिए कैलकुलेटर के ऊपर कि आपको कीज देखने की ज़रूरत नहीं है। You can work on it without seeing the keys. So you will work with that calculator which you are going to use in the exam. Are you clear about this? और कैलकुलेटर मैंडेटरीली होना ही चाहिए। I don't want to see people calculating on their mobile phones. ठीक है? तो जो कैलकुलेटर हम एग्जाम में यूज करेंगे उसको आज से ही यूज करना शुरू करेंगे, सो दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारा एफिशिएंसी जनरेट हो जाए। बिकॉज बहुत बार क्या करते हैं ना, मोबाइल में करते रहते, फिर एग्जाम में एक कैलकुलेटर लेकर चले जाते हैं, एंड दैट कैलकुलेटर मेक्स अस वेस्ट 10-15 मिनट्स विदाउट बी रियलाइजिंग, राइट? सो वी डोंट वांट टू गेट इनटू सच अ सिचुएशन। आर यू डन विद दिस? चलो और एक इलस्ट्रेशन करते हैं फिर इसके ऊपर। जल्दी से यार एकदम मेरे को डेप्रिसिएशन का कैलकुलेट करके बताओ अमाउंट। कॉस्ट दिया है, रेसिडुअल वैल्यू दिया है, डेप्रिसिएशन परसेंटेज दिया है। फटाफट कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू इनटू परसेंटेज। हाँ, कहाँ से 3 लाख? गाइस कम अप विद द राइट आंसर। 20%। अच्छा, आई नीड टू डू बेटर ऑन माई हैंड राइटिंग नाउ। हाँ, 20% इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। जल्दी सही अमाउंट बताओ। हाँ यार, कहाँ से 3 लाख? 2,40,000 सही जवाब किसका आ रहा है?
राइट, द आंसर इज 3 लाख। हड़बड़ी में रेसिडुअल वैल्यू माइनस मत करना। whenever the rate is given you will have to apply it on the cost, you have to ignore the residual value. are you clear? so इस केस में depreciation कितना आएगा? depreciation will be 15 lakhs into 20%, which is rupees 3 lakhs. Got it?